Hello students, welcome you all to our third session of our science chapter number 3, that is metals and non-metals. Students, in the previous two sessions we have discussed regarding the physical and chemical properties of metals and non-metals, and then we discussed about the formation of few ionic compounds like sodium chloride and magnesium chloride. Okay, now today let us continue with the further topics. Okay students? Students, our today's first topic is occurrence of metals. Students, we all know that various kinds of metals occur in our nature earth. Okay, the earth's crust is the major source of metals. Inside the earth crust there are lots of metals available there. Seawater also contains some soluble salts such as sodium chloride, magnesium chloride, etc. Students, I am reading this from page number 49 of your NCERT textbook. Okay, the elements or compounds which occur naturally in the earth crust are called minerals. What do you mean by minerals? Minerals means the elements of or compounds which occur naturally inside the earth crust. अर्थ क्रस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हमको मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं. ओके, जो भी हम अर्थ क्रस्ट में से निकालते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स. ओके, then comes ores. What do you mean by ores? Ore is a mineral from which metals can be extracted profitably. अभी minerals तो क्या होता है? Minerals जब हम निकालते हैं they consist of many impurities also. Okay, तो from that impurities we extract some important metal. वो पूरे mineral में से हम किसी एक metal को निकालते हैं. Okay, तो उसको हम क्या बोलते हैं? Ore. Ore is a mineral from which metals can be extracted profitably. Then comes gangue. Gangue. Gangue means what? It is the impurities present in the ore like rock particles, sand particles, clay particles, etc. ओके, ओर के साथ साथ है ना कुछ impurities भी होते हैं. ओर में मेन मेटल भी होता है and along with that main metal some impurities are also there like rock particles, sand particles, clay particles, etc. Okay, तो ore along with all these impurities, so these impurities are called gangue. After removing this gangue you will get the main metal from the ore. Okay students, now let us discuss about the extraction of metals from their steps. Okay, before reading these three main steps, let me discuss that some of the metals found in the nature's earth's crust is in the free state. हमारे अर्थ क्रस्ट में कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो एकदम फ्री स्टेट में अवेलेबल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सम मेटल्स विच आर वेरी लीस्ट इन द रिएक्टिविटी सीरीज. जो हमने लास्ट टाइम रिएक्टिविटी सीरीज देखा था ना स्टूडेंट्स, उसके जो सबसे नीचे जो थे जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, दे आर वेरी लीस्ट इन द रिएक्टिविटी सीरीज. दे आर ऑफन फाउंड इन द फ्री स्टेट. मतलब वो किसी के साथ कंपाउंड में नहीं फॉर्म होते हैं, हमको फ्री स्टेट में मिलते हैं. फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, दे आर ऑल फाउंड इन द फ्री स्टेट. बट समटाइम्स कॉपर एंड सिल्वर दे आर फाउंड इन द कंपाउंड स्टेट ऑल्सो. ओके, सल्फाइड के या ऑक्साइड के ओर्स में पाया जाता है सिल्वर या कॉपर, बट उसमें से हम सल्फाइड और ऑक्साइड और निकाल के उसका फ्री स्टेट हम ले लेते हैं. बट इफ़ यू टॉक अबाउट द हाईएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स जो सीरीज़ में ऊपर है, जो रिएक्टिविटी सीरीज़ के ऊपर होते हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम. ओके, दीज आर ऑल मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स. दे आर सो रिएक्टिव दैट दे आर नेवर फाउंड इन द नेचर एज फ्री स्टेट. कभी भी ये अकेले नहीं पाए जाएंगे कि हमको अकेला सोडियम या अकेला पोटेशियम या अकेला मैग्नीशियम मिल गया. दे आर नेवर फाउंड इन द फ्री स्टेट. दे आर ऑलवेज फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट. किसी के साथ कंपाउंड बना के ही वो पाया जाता है. Now the elements which are in the middle order like zinc, iron, lead, okay, जो middle order में हैं, okay, they are always found in the form of what? They are moderately reactive, थोड़े बहुत reactive होते हैं, तो they are found as the oxides, sulfides और carbonates. ये ऑक्साइड के फॉर्म में जैसे जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, या सल्फाइड के फॉर्म में या कार्बोनेट्स के फॉर्म में जैसे जिंक कार्बोनेट या लेड कार्बोनेट, इसके फॉर्म में पाए जाते हैं. Okay, so in this way we have seen that the most reactive elements are always found in the combined form. The middle reactive order, middle में जो elements है वो ऑक्साइड के या सल्फाइड के या कार्बोनेट्स के फॉर्म में होते हैं. And the least reactive elements like silver and gold like or platinum, they are always found in the free form. ये किसी के साथ compound नहीं बनाते in the free state. Okay, now the extraction of these metals from their ores follows 3 steps. है ना, 3 स्टेप में हम लोग ओर में से मेटल निकालते हैं. एंड दिस 3 स्टेप्स आर
First is concentration of ore. Concentration of ore means what? It is the enrichment of ore. ओर को क्या करते हो? ओर मतलब क्या? उसके साथ में बहुत सारा क्या होता है? कचरा कचरा होता है। तो आप ओर को इतना ज़्यादा एनरिच, इतना ज़्यादा साफ सफाई कर देते हो कि मैक्सिमम कचरा उसमें से निकल जाता है। दैट इज़ कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। नाउ द ओर कंटेन्स मेन मेटल एंड वेरी फ्यू इम्प्यूरिटीज अलॉन्ग विथ इट। अंडरस्टूड? दैट इज़ कॉल्ड एनरिचमेंट ऑफ द ओर। देन कम्स रिडक्शन ऑफ द मेटल। ओके, इफ़ द ओर कंटेन्स सम एलिमेंट्स लाइक ऑक्साइड और ऐसे कुछ होते हैं तो उसका रिडक्शन करते हैं। ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए अगर आप रिडक्शन करोगे, रिडक्शन का मतलब ही क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, सो बाय द रिडक्शन ऑफ द मेटल यू कैन गेट द मेटल फ्रॉम दैट। ओके, एंड देन कम्स रिफाइनिंग। रिफाइनिंग मीन्स द फाइनल प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल। Okay, that is called. So these are the three main steps of the extraction of metals from their ores. We will discuss about each and every step in detail. अब इस चैप्टर में हमको इसको डिटेल में पढ़ना है, हर एक स्टेप को। Now what do you mean by the concentration of ore? Once again see, the first step is concentration of ore. Concentration of ore is the removal of gangue. Gangue means impurities from the ore by different methods. अलग अलग मेथड से हम क्या करते हैं कि जो मेन ओर होता है उसमें से सारी इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करने की कोशिश करते हैं ताकि खाली मेन मेटल बचे और सारी इम्प्यूरिटीज हट जाए। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स, इफ़ यू लुक एट दिस टेबल, दिस चार्ट, यू कैन स्टडी अबाउट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। ओर में से हमको मेन मेटल कैसे मिलेगा, उसके लिए चार्ट बनाया हुआ है। यू कैन सी दिस चार्ट ऑन पेज नंबर 50 इन योर NCERT टेक्स्ट बुक। अपने टेक्स्ट बुक में 50 नंबर पेज पे ये चार्ट बना हुआ है। ओके, नाउ दिस चार्ट, ये चार्ट क्या शो करता है? वंस अगेन इट शोज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। अभी फिर से एक बार बता देता हूँ बेटा, ओर मतलब क्या? जब हम ज़मीन में से कुछ चीज़ निकालते हैं ना तो वो मिनरल होता है, और अगर किसी मिनरल में कोई मेटल ज़्यादा पाया जाता है तो उसको हम ओर बोलते हैं। Okay, now ore contains many impurities along with the main metals, so we have to remove those impurities and we have to extract the main metal from that ore. तो which are the steps followed? तो तीन अलग अलग टाइप के मेटल्स के लिए तीन अलग अलग टाइप के स्टेप्स है। इफ़ द मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स मतलब कौन कौन से? अपने रिएक्टिव सीरीज के टॉप के 4-5 एलिमेंट्स लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, उनमें उनका हम कौन सा प्रोसेस करते हैं? उनका हम प्रोसेस करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन ओर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मोल्टन ओर? उस ओर को पूरा पिघला दिया जाता है। इट इज़ मेल्टेड बाय प्रोवाइडिंग हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। द ओर ऑफ द हाईली रिएक्टिव मेटल्स इज melted by providing high heat energy, and then electrolysis process is done. Which process? Electrolysis. Students, we are going to study each and every process in detail in this chapter only. And after that electrolysis process, you get the pure metal. All of the impurities are removed and you get pure metal in the molten form. पिघला हुआ metal मिलता है जिसको हम cool करके solidify करते हैं, solid में convert करते हैं. So this is about high reactive metals. Then comes metals of medium reactivity. Medium reactivity means which metals? Zinc, iron, lead, copper, ऐसे वाले कुछ metals. Okay, इसके दो तरह के ore होते हैं. If the metal is of medium reactivity, their ore can be of carbonate ore और sulfide ore. मतलब metal के साथ carbonate लगा हुआ है कि sulfide लगा हुआ है. अगर metal के साथ carbonate ore है, जैसे zinc carbonate या iron carbonate, if the carbonate ore is there, then we will adopt the process of calcination. Which process? Calcination. Calcination process करने पर आपको मेटल का ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑक्साइड ऑफ दैट मेटल। मतलब मेटल के साथ अभी खाली ऑक्सीजन ही है। सिमिलरली अगर आपके मेटल के साथ सल्फाइड ओर है, जैसे जिंक सल्फाइड या आयरन सल्फाइड या लेड सल्फाइड है, तो उसका हम रोस्टिंग करते हैं। इफ़ कार्बोनेट ओर इज देयर, देन वी गो फॉर द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन, एंड इफ सल्फाइड ओर इज देयर, वी गो फॉर द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग. By both the process, either calcination or roasting, you will get the metal oxide. अभी आपको जो फाइनली मिला वो है मेटल ऑक्साइड, मतलब मेटल है और इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। नाउ अभी हमको सिर्फ क्या निकालना है? ऑक्सीजन निकालना है। तो फॉर रिमूविंग ऑक्सीजन द बेस्ट प्रोसेस इज व्हाट? रिडक्शन. रिडक्शन मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. सो बाय द रिडक्शन ऑफ मेटल द ऑक्सीजन इज रिमूव्ड एंड यू विल गेट द मेटल. अब इस मेटल का लास्ट में हम रिफाइनिंग करते हैं जिससे आपको प्योर मेटल मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ फॉर द मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, जो मिडिल ऑर्डर में है. नाउ मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी.
जो एकदम नीचे आते हैं लिस्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल सिल्वर, गोल्ड, ऐसे सारे, दे आर वेरी लीस्ट रिएक्टिव मेटल, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। अगर इनके भी अगर सल्फाइड ओर्स होते हैं, जैसे कभी कभी मैंने बताया ना कि सिल्वर का सल्फाइड ओर होता है, तो उसका रोस्टिंग किया जाता है। बाय रोस्टिंग वी गेट द मेटल एंड बाय आफ्टर दैट मेटल वी गो फॉर द रिफाइनिंग प्रोसेस। ओके, सो दिस चार्ट ऑन द होल शोज कि अगर मेटल हाईली रिएक्टिव है या मीडियम रिएक्टिव है या लीस्ट रिएक्टिव है, तो कौन कौन सा प्रोसेस करके आपको प्योर मेटल मिलता है। नाउ वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी प्रोसेस इन डिटेल। हर एक रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आवर फर्स्ट टॉपिक वी आर टेकिंग इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, है ना, विच आर लो इन एक्टिविटी सीरीज। तो लो इन एक्टिविटी सीरीज मतलब मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ये सारे जो होते हैं ना एकदम लो होते हैं, लो इन द एक्टिविटी सीरीज। ओके, उनमें से हम लोग कैसे मेन मेटल निकालें। तो मेटल्स विच आर लो इन द एक्टिविटी सीरीज कैन बी reduced टू द मेटल्स बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब उनका रोस्टिंग प्रोसेस करें हम लोग। रोस्टिंग प्रोसेस से क्या होता है कि उसको हम ऑक्सीजन दे देते थे। उसमें अगर सल्फाइड का ओर होगा ना, तो सल्फाइड हट के वो ऑक्सीजन कंबाइन कर लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओर सिनेबार। मर्क्यूरी के ओर का नाम क्या है? सिनेबार, HgS। वी कैन से मर्क्यूरिक सल्फाइड। मर्क्यूरी का सिंबल होता है Hg और ये सल्फाइड है, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड का कॉमन नेम है सिनेबार। तो ये उसका ओर है, मर्क्यूरी का ओर है, उसमें सल्फाइड का ओर है, ठीक है ना। तो पहले हमको सल्फर को निकालना पड़ेगा, तो उसको हम क्या करेंगे? वी विल हीट इट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो सी द फर्स्ट रिएक्शन, mercuric sulfide that is cinnabar is heated in the presence of oxygen, excess oxygen. Okay, तो you will get mercuric oxide। क्या मिला आपको? mercuric oxide प्लस 2O2 लिखा है ना, उधर एक्चुअली 2SO2 है, SO2। स्टूडेंट्स बाजू में जो 2O2 लिखा है इट इज SO2, मेक द करेक्शन, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड आएगा। ओके, यू कैन सी दिस इक्वेशन ऑन पेज नंबर 51 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 51 का पहला रिएक्शन यही है। HgS plus 3O2 will in the presence of heat will give you 2HgO, mercuric oxide मिला, प्लस 2O2 नहीं, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। मेक द करेक्शन ओवर देयर स्टूडेंट्स। ओके, नाउ अब जो आपको ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिला उसको हम फिर से हीट करेंगे, मतलब रिडक्शन कर रहे हैं अभी। हीट करने पर क्या होगा? ऑक्सीजन हट जाएगा एंड यू विल गेट प्योर मर्क्यूरी, आपको Hg मिल जाएगा मर्क्यूरी। ओके, तो दो स्टेप पे, पहले सल्फाइड को रिमूव करने के लिए ऑक्सीजन ऐड किया, फिर ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, तो आपको क्या मिल गया? मर्क्यूरी। इन द सिमिलर वे इफ़ वी आर गोइंग फॉर द कॉपर सल्फाइड, कॉपर का जो ओर है कॉपर सल्फाइड, तो पहले कॉपर सल्फाइड को एक्सेस ऑक्सीजन में हीट किया, तो यू विल गेट कॉपर ऑक्साइड Cu2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ओके, SO2। नाउ एक बार आपको मिल गया कॉपर ऑक्साइड Cu2O, उसको वापस से किससे, इसको देखो वापस से हीट तो कर रहे हैं लेकिन किससे? कॉपर सल्फाइड से, कॉपर सल्फाइड से, Cu2S से। ओके, एक्चुअली स्टूडेंट्स कॉपर सल्फाइड का फॉर्मूला Cu2S है, तो ये जो पहला रिएक्शन है ना CuS लिखा है, वहाँ पे Cu2S करना। ओके, इसके लिए फॉर बेटर रिएक्शंस यू कैन गो फॉर पेज नंबर 51 NCERT। इस पेज में, इस पिक में एक आध मिस्टेक से, सो वंस अगेन लेट मी रिपीट यू कि कॉपर सल्फाइड का फॉर्मूला होता है Cu2S, Cu के नीचे 2 होना चाहिए। ओके, Cu2S plus 3O2 will give you Cu2O, copper oxide plus sulfur dioxide. Now once again we will heat this copper dioxide with copper sulfide. Again we will heat, then you will get copper plus sulfur dioxide. तो आपको copper free state पे मिल जाएगा। So we have seen the extraction of metals which are low in activity series like mercury and copper, है ना, दे आर लो इन द एक्टिविटी सीरीज। तो उनको पहले, वो सल्फाइड के ओर्स होते हैं, तो उनको पहले हम रोस्ट कर देते हैं, मतलब पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, एंड आफ्टर कन्वर्टिंग इन ऑक्साइड उनका रिडक्शन करके हम क्या करते हैं? मेन मेटल गेन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स विच आर मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। ओके, लाइक जिंक, आयरन, लेड। ओके, दे आर ऑलवेज फाउंड इन द ओर्स ऑफ व्हाट? ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट्स। मैंने आपको पहले ही बताया था जो मिडिल ऑर्डर में एलिमेंट्स है, मेटल्स है, उनके मोस्टली कौन से ओर्स होते हैं? ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के ओर्स होते हैं। ओके, तो व्हाट यू विल डू, इनके दो स्टेप्स होते हैं, वी हैव सीन इन द चार्ट। ओके, इफ़ द ओर इज ऑफ ऑक्साइड, अगर ऑक्साइड का ओर है तो हम उसका रोस्टिंग करते हैं, और अगर सल्फाइड का ओर है तो, या कार्बोनेट का ओर होता है तो हम क्या करते हैं? उसका कैल्सिनेशन करते हैं। ओके, तो सी इफ़ द ओर इज ऑफ
सल्फाइड का ओर है तो उसका रोस्टिंग करते हैं, और कार्बोनेट का ओर हो तो कैल्सिनेशन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग जिंक सल्फाइड, तो सिंस इट इज एन सल्फाइड ओर तो उसका रोस्टिंग करना। रोस्टिंग मीन्स व्हाट, वी आर हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस ऑक्सीजन। वंस अगेन लेट मी एक्सप्लेन यू, ये रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के दोनों के डेफिनेशन एग्जाम में पूछते हैं, तो मैं आपको पहले मैं दोनों का डेफिनेशन ही बता देता हूँ, देन वी विल गो फॉर द इक्वेशन। रोस्टिंग मीन्स heating of the sulfide ores in the presence of excess oxygen. Heating of sulfide ores in the presence of excess oxygen, that is called roasting, so that the compound is converted in the oxide form. Oxide में compound convert हो जाता है. And calcination means roasting the compounds of carbonates. जो carbonates के compounds होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, oxide में convert करते हैं in the absence of heat. हम we heat in the absence of oxygen. Okay, we are heating but in the absence of oxygen. Okay, that is calcination. So let us go for the reaction now. First is roasting. Zinc sulfide. Zinc sulfide जो आपका ओर है उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने हीट किया एक्सेस ऑक्सीजन में, तो वी गॉट जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, नाउ कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में कौन सा ओर होना चाहिए, कार्बोनेट ओर। ओके, इसमें थोड़ा करेक्शन है, देखो जो स्टेटमेंट है उसमें करेक्शन है। स्टेटमेंट क्या बोला है, कैल्सिनेशन इज हीटिंग ऑफ एन ऑक्सीजन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये सही है। इट इज़ यूज टू कन्वर्ट सल्फाइड ओर दिया है, उधर सल्फाइड कट करके उसको लिख देना कार्बोनेट ओर। कैल्सिनेशन में सेकेंड लाइन में सल्फाइड ओर को कट करके कार्बोनेट ओर करना। इट इज़ यूज टू कन्वर्ट कार्बोनेट ओर्स इनटू ऑक्साइड फॉर्म, ये कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। सो यू गेट जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके स्टूडेंट्स, सो दोनों रोस्टिंग में और कैल्सिनेशन में दोनों में आपको आखिरकार मिला क्या, ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। ओके, अब ये ऑक्साइड में से हम क्या करेंगे, इसका रिडक्शन करेंगे और आप क्या करोगे, ऑक्सीजन को रिमूव करोगे। तो हाउ विल वी डू द रिडक्शन, वी विल डू द रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एन रिड्यूसिंग एजेंट कॉल्ड कोक। कोक इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, एक्चुअली कोक एक ना कार्बन का ही फॉर्म है। ओके, तो जिंक ऑक्साइड को हम हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कोक। Zinc oxide is heated in the presence of coke and the reduction of zinc oxide takes place. This oxygen will go with the carbon and you will get free zinc. आपको zinc मिल गया plus carbon monoxide you will get. Okay, so this is the process of extraction of metal in the middle of the reactivity series. दो प्रोसेस है, अगर सल्फाइड का ओर है तो आप क्या करेंगे, उसका रोस्टिंग करेंगे, और अगर कार्बोनेट का ओर है तो उसका हम क्या करेंगे, कैल्सिनेशन करेंगे। एंड एट द एंड ऑफ बोथ द प्रोसेस यू विल गेट ऑक्साइड ऑफ द मेटल। सो टू रिमूव दैट ऑक्सीजन वी विल गो फॉर द रिडक्शन ऑफ दैट मेटल। ऑक्साइड का रिडक्शन करो तो ऑक्सीजन हट जाएगा एंड यू विल गेट द प्योर मेटल। ओके स्टूडेंट्स, वंस अगेन लेट मी टेल यू कि जहाँ जहाँ पे करेक्शन है मैं आपको करेक्शन के बारे में बताता हूँ, तो आप लोग वो करेक्शंस कर लेना आप लोग। ओके, नाउ स्टूडेंट्स लेट अस डिस्कस अबाउट वन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज थर्माइट रिएक्शन। ओके, थर्मिट बोलते हैं, थर्माइट बोलते हैं। थर्मिट रिएक्शन ओके इज अ रिएक्शन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो, ये अलग सा डेफिनेशन एग्जाम में मांगते हैं। एक्चुअली व्हाट हैपन्स इन दिस, समटाइम्स सम रिएक्टिव मेटल्स like sodium, calcium, aluminum etc. are used as reducing agent to obtain main metals from their oxides. ओके, जो मेन मेटल है जैसे मैंगनीज डाइऑक्साइड आप देख सकते हो, मैंगनीज डाइऑक्साइड में से अगर आपको मैंगनीज चाहिए, मैंगनीज अगर आपका मेन मेटल है तो मैंगनीज डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन हटाना है, तो ऑक्सीजन हटाना मतलब उसका रिडक्शन करना है। तो फॉर दैट रिडक्शन वी हैव टू यूज लाइक सम रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम एल्यूमिनियम यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो व्हेन एल्यूमिनियम इज रिएक्टेड विथ मैंगनीज डाइऑक्साइड तो मैंगनीज इज सेपरेटेड और आपको ये जो ऑक्सीजन है एल्यूमिनियम से कंबाइन होकर आपको मिलता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। तो लेट मी एक्सप्लेन यू वंस अगेन स्टूडेंट्स, व्हेन मैंगनीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विथ, हीटेड नहीं सिंपली रिएक्टेड, हीट भी नहीं प्रोवाइड कर रहे, सिंपली रिएक्टेड विथ एल्यूमिनियम वी गेट मैंगनीज, मेन मेटल मिल गया मैंगनीज, और साथ में क्या मिलता है आपको, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बट इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इट प्रोवाइड्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जैसे ही आप मैंगनीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम से रिएक्ट करोगे, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल बी प्रोड्यूस्ड एंड द मेटल्स विच यू आर ऑब्टेनिंग विल बी इन मोल्टन स्टेट। इतना ज़्यादा हीट मिलता है कि मैंगनीज जो है पिघल जाता है और आपको पिघला हुआ मिलता है।
Such reactions are called thermit reactions. Okay, so once again students, thermit reaction मतलब ऐसे कुछ ऑक्साइड्स होते हैं जिनको हम ना रिड्यूस करने के लिए सोडियम या कैल्शियम या एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं. ओके, एंड आफ्टर रिडक्शन इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस विच प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और जो मेन मेटल आपका है ना वो आपको मोल्टन स्टेट में मिलता है. ओके, एंड दैट इज़ कॉल्ड थर्मिट रिएक्शंस. एंड दिस रिएक्शन इज़ वेरी मच यूजफुल इन द रेलवे ट्रैक्स, ब्रोकन मशीन पार्ट्स, जहाँ पे रेलवे ट्रैक्स टूट जाते हैं या फिर ज्वाइन करने होते हैं या कोई मशीन का पार्ट टूट जाता है तो वहाँ पे थर्मिट रिएक्शन यूज़ करते हैं. कैसे? जैसे सी आयरन ऑक्साइड. आयरन ऑक्साइड इज़ अ ऑक्साइड ऑफ मेटल आयरन. आपको आयरन चाहिए. ओके, तो उसको एल्यूमिनियम से हम क्या कर रहे हैं? रिडक्शन कर रहे हैं. वी आर डूइंग द रिडक्शन प्रोसेस बाय एल्यूमिनियम, यूजिंग एल्यूमिनियम. तो एल्यूमिनियम विल गेन दैट ऑक्सीजन. एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया और आयरन क्या हो गया? फ्री हो गया. बट दिस इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इतना हीट प्रोड्यूस होता है कि आयरन क्या हो जाता है? पिघल जाता है. दिस आयरन गेट्स मेल्टेड एंड दैट मोल्टन आयरन इज यूज्ड to join the railway tracks or the broken machine parts. Okay, this molten iron is used. You can see the figure also students. I will show you the figure also. तो see you the figure. ये जो thermite reaction जो है उसका figure देखो welding के लिए use किया गया है. Okay, here what they use iron oxide and aluminium along with that. जब दोनों का रिएक्शन करते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलता है एंड आयरन इज प्रोड्यूस्ड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड. सो दैट आयरन इज इन लिक्विड फॉर्म. वो आयरन लिक्विड फॉर्म में क्या करेगा? दो रेल्स के बीच के गैप को भर देगा और उसको फिर क्या हो जाएगा? ज्वाइन कर देगा. ओके, सो दिस थर्माइट रिएक्शन इज यूज्ड इन द वेल्डिंग प्रोसेस ऑल्सो. ओके, मशीन के पार्ट्स को जोड़ना या रेलवेज जोड़ना, इट इज़ यूज्ड इन सच प्रोसेसेस. So students, it is an important definition and example you should study. Okay students. So students, here we end our today's session. Students, in today's session we have discussed about the occurrence of metals in our earth's crust. अर्थ क्रस्ट में कौन कौन से मेटल्स मिलते हैं, है ना. देन वी डिस्कस्ड सम टर्म्स लाइक मिनरल्स, ओर्स, गैंग एक्सेट्रा. देन वी हैव सीन दैट हाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स टेक्स प्लेस. ओके, फिर हमने देखा कि ओर को कैसे हम क्या कर सकते हैं, ओर में से मेटल्स कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं. फॉर द हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल्स इट इज़ अ डिफरेंट प्रोसेस. फॉर मिडिल ऑर्डर रिएक्टिव प्रोसेस इट इज़ अ डिफरेंट प्रोसेस. एंड फॉर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स इट इज़ अ डिफरेंट प्रोसेस. हमने उसका एक चार्ट देखा था. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स विच आर लो इन एक्टिविटी सीरीज, जैसे हमने मर्क्यूरी का और कॉपर का देखा था. ओके, देन वी हैव सीन द एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल्स विच आर मिडिल इन द एक्टिविटी सीरीज. लाइक वी हैव सीन कि भाई रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों प्रोसेस देखा. दोनों प्रोसेस में से हमने ऑक्साइड बनाया एंड आफ्टर द रिडक्शन ऑफ दैट मेटल वी गॉट द प्योर मेटल. एंड देन वी हैव सीन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज थर्माइट रिएक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय थर्माइट रिएक्शन? ओके, थर्मिट प्रोसेस क्या होता है, हाउ इट इज़ यूज फॉर जॉइनिंग रेलवे ट्रैक्स. ओके, स्टिल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द व्हाट एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल्स विच आर टॉप इन एक्टिविटी सीरीज. हमने बॉटम वाला कर लिया, लीस्ट वाला कर लिया, मिडिल वाला कर लिया, टॉप वाला नहीं किया है. सो वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स विच आर टॉप इन द एक्टिविटी सीरीज in the next session, and then we will discuss some other topics also. Till then, thank you students. Go through this video in detail.